رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی عالم میں کوئی کمی دیکھیے، کسی عالم میں کوئی کمی زیادتی نظر آئے تو سب سے پہلے اس سے پوچھئے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، کیا آپ کو کوئی عذر ہے یا ایسا کرنا بھی جائز ہے؟ اس لیے کہ اب شریعت کے جو احکام آنے تھے وہ آ چکے، اب تو کوئی نیا حکم آئے گا نہیں۔ جو کچھ احکام ہمارے نبی پر نازل ہونے تھے وہ نازل ہو چکے، اب تو کوئی نیا حکم آئے گا نہیں۔ اب جو حکم آئے گا وہ اسی شریعت سے ہوگا، انہی بیان کردہ احکام میں سے ایک ہوگا۔ تو جو کوئی عمل کرتے ہوئے، جو کچھ کرتے ہوئے کسی عالم کو دیکھیے اور بات اگر آپ کے ذہن میں نہ آئے تو سب سے پہلے اس سے پوچھئے، اپنے دماغ میں غلط فہمی مت پالیے، ان سب چیزوں سے بچیے، سب سے پہلے اس سے پوچھئے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی چیز بتائے تو سب سے پہلے اس کی حقیقت تک پہنچیے، بعد میں کوئی فیصلہ کریے، بنا جانے بوجھے کسی چیز کا فیصلہ نہ کریے۔ قرآن مقدس نے کیا ارشاد فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اس کو لے کر کے بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ قرآن کا جو ظاہری ترجمہ ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو ہیں، اب اس میں سے الگ سے کوئی دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ ہیں تو ماننا پڑے گا ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری روایات کو دیکھنا پڑے گا، دوسری دلیلوں کو دیکھنا پڑے گا، دوسری جگہ سے حکم کو نکالنا پڑے گا کہ آخر قرآن نے یہ کہا کیوں، قرآن نے یہ بیان کیوں کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ قرآن نے کیوں کہا؟ آخر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی کے اوپر احکام نازل ہو رہے تھے، صحابہ عمل کر رہے تھے، نبی کے اوپر جو بھی حکم آ رہا تھا، جو بھی آیت نازل ہو رہی تھی، صحابہ مان رہے تھے، صحابہ ہر چیز کو مان رہے تھے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آخر قل انما انا بشر مثلکم، یا محبوب فرما دیجئے میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب صحابہ کو کسی چیز سے انکار نہیں تھا، کسی چیز سے اعتراض نہیں تھا، کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، تو وہ آخر میں یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی، کوئی تو سبب رہا ہوگا جس کی وجہ سے قرآن نے یہ بیان کیا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں بھی بشر ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آخر ضرورت تو تب پڑتی ہے جب کوئی اعتراض ہو۔ صحابہ سے اگر نبی نے فرما دیا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، صحابہ نے مان لیا کہ ہاں وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور نے بیان فرما دیا کہ اگر وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تم تیمم کر لو، ہو جائے گی نماز۔ صحابہ نے مان لیا ہو جائے گی نماز۔ اب یہ نہیں ہے کہ پانی تو ہے نہیں، اب کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں، حضور نے جیسا بیان فرمایا صحابہ نے ویسا مان لیا۔ پھر آخر یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ آخر قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب فرما دیجئے میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو آئیے آپ کو لے چلتا ہوں یہ واقعہ سمجھانے کے لیے بہت دور۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نمرود نامی بادشاہ بھی تھا۔ ایک نمرود بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خدائی کے دعوے کو توڑا، اس کے خدائی چیلنج کو توڑا، تو اس وقت اس نے کیا کیا جواب دیا تھا؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک خدا کی دعوت دی، ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا، تو اس نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، میری عبادت کرو، خدا میں ہوں، میری
खुदा मैं हूँ, मेरी परस्तिश करो, माज़ अल्लाह। तो इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? मेरा रब वो है जो जिलाता और मारता है, जिंदा करता और मारता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहने का मतलब ये था कि लोगों को पैदा करता है और उन्हें मौत देता है। लेकिन उस कम अक्ल को ये बात समझ में न आई। उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को मरवा दिया और दूसरे को आजाद कर दिया और कहा देखो मैं भी जिलाता और मारता हूँ। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने ऐसी दलील रखी कि वो हक्का बक्का रह गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में डुबाता है। अगर तू रब है तो तू पश्चिम से सूरज को निकाल। कफर, तो वो काफिर हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रहेगा कि आखिर मैं अब ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि पश्चिम से सूरज को निकाल लाऊं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये दलील पेश की तो उस वक्त ये दलील बन गई, जो कोई पश्चिम से सूरज को निकाल देगा तो वो खुदा हो जाएगा, जो कोई पश्चिम से सूरज को वापस ले आएगा तो वो खुदा होने के लायक हो जाएगा, जो कोई पश्चिम से सूरज को निकाल देगा तो उसकी पूजा की जाने लगेगी, उसकी परस्तिश और इबादत की जाने लगेगी, वही खुदा हो जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दावा किया था कि तू अगर खुदा है तो पश्चिम से सूरज को निकाल। अब आइए इसी बात को इसी जगह पर रोक देते हैं और आते हैं हमारे नबी की बारगाह में। हजरत अली हमारे नबी के जानों पर सर रख करके आराम फरमा रहे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के जानों पर सर रख कर आराम फरमा रहे थे और हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो रही है। इधर सूरज डूबने को आया है, हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं। हजरत अली इस सोच में गुम है अगर सूरज डूब गया तो नमाज चली जाएगी, नबी को जगाया तो बेअदबी और गुस्ताखी हो जाएगी, ईमान चला जाएगा। अब ईमान बचाऊं या फर्ज बचाऊं? इस पर हजरत अली कशमकश में थे कि आंखों से आंसू आ गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर वो आंसू टपक करके गिरा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। हमारे नबी फरमाते हैं अली क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हजरत अली बयान करने लगे या आका सूरज डूब रहा है, मैंने अभी तक नमाज असर अदा नहीं की है, मुझे डर है कि नमाज असर कज़ा हो जाएगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को इशारा किया, सूरज फौरन वापस आ गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरज की तरफ इशारा करना था कि सूरज वापस आ गया। तमाम अहले मक्का ने देखा कि डूबा हुआ सूरज वापस आ गया है। अब उस बात को जहन में लेकर के आइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था जो पश्चिम से सूरज को लेकर के आएगा वो खुदा हो जाएगा। तमाम अहले मक्का के जहन में कहीं ऐसा ना आने लगे कि इन्होंने सूरज को वापस कर दिया है, मोहम्मद खुदा हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग सोचने लगे कि हुजूर ने सूरज को वापस कर दिया है, अब इनकी इबादत की जाएगी, इनकी पूजा की जाएगी, इनकी परस्तिश की जाएगी। इस पर कुरान ने आकर के ऐलान कर दिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब फरमा दीजिए कोई अपने जहन में वो पुरानी बात लेकर के ना आए कि अगर पूरब से अगर पश्चिम से सूरज को वापस कर दिया है तो खुदा हो गए हैं। नहीं नहीं, आप इन्हीं के जैसे बशर हैं, लेकिन कौन से बशर हैं? यूहा इलैया, इनकी तरफ अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है, इनकी तरफ अल्लाह का पैगाम आता है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती शरीफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है, इनकी तरफ अल्लाह की तरफ से अहकाम आते हैं। और आगे कुरान ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, जो कुछ बयान करते हैं ये सब अल्लाह ही का हुक्म होता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं। जिसका बोलना खुदा का बोलना हो, जिसका बयान करना खुदा का बयान करना हो, जिसका हुक्म देना खुदा का हुक्म देना हो, जो वो कह दे जायज तो जायज हो जाए, जो वो कह दे नाजायज तो नाजायज हो जाए, भला वो हमारे जैसे कैसे हो सकता है? कुरान ने बयान कर दिया किस वजह से हमारे जैसे हैं, ताकि कोई पूजा ना करने लगे।
दूसरी तरफ बयान कर दिया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ कहते हैं सब ये इलाही हुआ करता है, यूहा इलैया इनकी तरफ वही की जाती है। दूसरी तरफ इरशाद फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया। तमाम दलीलें बयान करके अल्लाह ने ये साबित कर दिया, समझो बशर इबादत ना करने के लिए और अपनी तरफ ना समझो इनकी शान। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, क्या कहना है, माशाअल्लाह। ये सब हमारे दरमियान जो खुराफात आ जाती हैं जहन में, ये इल्म की कमी की वजह से। जो चीज़ समझ में ना आए तो अपने उलमा की तरफ रुजू करें। बेहतर यह है कि हर कोई अपने अपने घरों में से बच्चों को आलिम और हाफिज़ बनाए। जब हमारे घरों में आलिम और हाफिज़ होंगे तो हमारे दरमियान किसी तरीके के कोई शक व शुबा नहीं होंगे। हमारे आमाल का दारोमदार हमारे ऊपर है, हमारे आमाल हमारे ऊपर हैं, लेकिन ईमान हमारा हमारे कब्जे में नहीं है। ईमान ये एक ऐसी चीज़ है कि कब निकल जाए हमें पता ही नहीं चलता। अगर एक ज़र्रा बराबर शक व शुबा हो गया किसी चीज़ के बारे में, किसी फ़र्ज़ को हल्का जान लिया तो फ़ौरन ईमान से खारिज हो जाएंगे। सहाबा कराम जा रहे थे ग़ज़वे तबूक के मौके पर, सिर्फ उनके साथ रहने वाले कुछ लोगों ने क्या कहा था कि उनकी फौज बहुत लंबी तादाद में है और हमारी फौज कम है, लग रहा है वहां से बच करके वापस नहीं आएंगे। इतना कहा था, इतने कहने की वजह से कुरान फौरन बयान कर रहा है, हजरत जिब्रील अमी वही लेकर के आए, ला तातज़िरु क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, कि अब तुम बहाना ना बनाओ, तुमने शक किया हल्का सा, तुम काफिर हो गए। हल्का सा नबी के अज़्म पर तुमने शक किया, फौरन तुम काफिर हो गए। अब कोई बहाना ना बनाओ कि हम तो वैसे हंसी मजाक में कर रहे थे, हम तो वैसे टाइम पास के लिए कर रहे थे। ईमान हमारे सीनों से कब निकल जाए हमें पता नहीं चलता। लिहाजा हम लोगों को अगर कोई भी बात समझ में ना आए, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो अपने उलमा की तरफ रुजू करें। अपने घरों में आलिम होगा, अपने घरों में हाफिज होगा तो हम उससे रुजू कर सकते हैं, हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी आप लोगों के बारगाह में बस यही एक अर्ज है, यही एक दुआ है कि अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, गीबत और चुगली से बचिए, एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाने से बचिए, हंसी मजाक उड़ाने से बचिए, गीबत करने से बचिए, तमाम बुराइयों से बचने की हत्तल इम्कान कोशिश करिए। अगर कोई किसी की जासूसी करने के बारे में पूछ रहा है तो मैं ये नहीं कहता कि उनसे झूठ बोल दो, सबसे आसान तरीका है मुझे नहीं मालूम है, अगर होगा तो हो सकता है वैसा, मुझे इसका इल्म नहीं। तुम भी सुखी, हम भी सुखी। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी की जासूसी ना करें, किसी की गीबत ना करें, अगर कोई आपसे पूछ भी रहा, कोई कुछ किसी के बारे में कुछ कहलवाना चाह रहा है तो आप कहिए मुझे इसका इल्म नहीं, हो सकता है वैसा हो। अगर वो कहे कि आप वहाँ पर थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है बात हो रही मैंने ध्यान नहीं दिया। ये एक आसान तरीका है गुनाह से बचने का, एक आसान तरीका है गुनाह से बचने का। तरीके कई हैं लेकिन उनमें से एक आसान तरीका है कि अगर वो कहे आप थे वहाँ पर तो कहे मैंने ध्यान नहीं दिया। गीबत से बचे, गुनाह से बचे। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि